So class 11, yesterday I gave you a question. Let's complete that first. It had equation like N2 plus 3 times of H2 reversible sign 2 times of ammonia. We have to depict the Q, which is NH3 whole twice N2, and here it is H2Q. When Kc is given to you, and that was 0.061. What all data is given to you, just input that. Ammonia is 0.5 moles per liter. N2 is 3 and this is 2. What are you getting? Is it so? ठीक है, अब कंपेयर कर लो बेटा. K बड़ा 0.06, ये 0.01, तो obviously Kc is greater than Q. So the reaction is going to proceed in the forward direction. मैं ऐसे लिख रही हूँ forward reaction, आप लोग proper लिखना that the reaction will proceed in the forward direction or tends to proceed to reach equilibrium in the forward direction. So if not, which direction? पहले तो उन्होंने पूछा is the reaction at equilibrium? No, the reaction is not at equilibrium. Okay. करें आगे? Okay. Now put down the heading types of chemical equilibrium. I hope everyone is done with it. Online students, I suppose everything is done. One, yeah. So now put down the heading types of chemical equilibrium. So we have two categories. One is homogeneous. Second is heterogeneous. अगर बच्चे आपके जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो सबके सब एक ही फेज में है और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए रिवर्सिबल इक्वेशन के अंदर, सबके सब देखो ऑल ऑफ दीज आर गैसेस, दैट शोज ये होमोजेनस इक्विलिब्रियम है. और अगर आपके जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टेट डिफरेंट है, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस का, तो हम कहेंगे अगर रिवर्सिबल इक्वेशन है डेफिनेटली कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम अटेन हो ही गया होगा, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. मगर क्योंकि सबके सब डिफरेंट फेज में है, इसे हम बोलते हैं हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम. Got it dear? Definitions are there in the notes, that's why I'm not writing it, but the language works in the same manner as I've just said. तो प्लीज जरा इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. So I suppose it's done dear. Okay, let's move on to the next page. Put down the heading predicting
the extent of a reaction. See beta, Kc and or Kp, whatever you calculate according to the equation, according to the question. तो ये जो होते हैं Kc Kp की जो वैल्यूज आती है, द मैग्नीट्यूड दैट यू गेट एज द आंसर is actually directly proportional to the concentration of products and is inversely proportional to the concentration of reactants. तो अगर Kc Kp की वैल्यू बहुत हाई है, समझ जाना वो रिएक्शन बहुत फास्ट है। और अगर Kc Kp की वैल्यू बहुत लो है, लाइक 10 माइनस समथिंग, ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत स्लो है। अगर माइनस में भी नहीं है और आपको मैम बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, मॉडरेट पार्ट पर है, तो हम कहेंगे मॉडरेट रिएक्शन है। तो केसी और केपी हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है, प्रोडक्ट जल्दी बनने वाले हैं, प्रोडक्ट देर में बनने वाले हैं, या प्रोडक्ट ठीक ठाक टाइम पे बनने वाले हैं। गॉट इट देयर? तो जरा कुछ पॉइंट्स है, नोट कीजिए। केसी और केपी मैग्नीट्यूड is directly proportional to the concentration of products and inversely proportional to the concentration of reactants. This implies that a high value of K is suggestive of a high concentration of products. यानी अगर K की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत जल्दी बनने वाले हैं विद हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से बेटा ज्यादा है, अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से कम है, तो हम लोग यहाँ पे दो कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं, फिर उसको देखते हैं। अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ है, यानी Kc इज वेरी लार्ज, यहाँ पे Kc इज वेरी स्मॉल। प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट रिएक्टेंट्स, और इधर रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट्स। डन? Is everyone done? So the third point is the reaction will proceed nearly to completion, क्योंकि K की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और यहाँ लिखिए the reaction proceeds rarely. अगर अब fourth point, if in case Kc is in the range of 10⁻³ to 10⁻+3, अब इनके बीच में है,
ठीक है, 10⁻³ से ज्यादा नहीं है, 10⁻³ से कम नहीं है, मगर बीच में आ रही है वैल्यू, तो हम बोलेंगे एप्रिशिएबल, जिसे मैं मॉडरेट कह रही थी, concentration of both reactants and products are obtained or are present. जो भी हमने पढ़ा है वो मैंने इस एरो के थ्रू एक्सप्लेन किया है बेटा। 10⁻³ से ज्यादा एक्सट्रीमली लार्ज, 10⁻³ से कम नेग्लिजिबल, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, रिएक्शन प्रोसीड्स इस एक्सटेंट पर, और 1 पे बोले तो बोथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। Done? Okay. So we have a question here. Predict which of the following will have appreciable concentration of reactants and products. आप केसी की वैल्यू देखो, जो मैं 3 रिएक्शन लिखने वाली हूँ, और उसके बेसिस पे बताओ कहाँ पे केसी इस वैल्यू को लेकर बैठा है कि उसके एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल जाए। See, when it comes to the value, this one, it's very small, my dear, isn't it? -39, ठीक है। और अगर हम ये देखें 1.8, और एक ये देखें ये, तो दिस इज लाइक वेरी हाई, 10⁻+8 में जा रहा है, ठीक है। तो मॉडरेट पार्ट तो बेटा बस यही रह गया फिर, तो यानी दिस इज द आंसर, दिस वन। गॉट इट?
डन। Online students, I suppose everything is done. I'm moving on to the next page. Now put down the heading, application of law of mass action and law of equilibrium. अब बेटा एक तरह से मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराना सिखा रही हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स होते कैसे हैं। आपको मानिए एक इक्वेशन गिवन है, उन्होंने आपको उसके इनिशियल मोल्स दे रखे हैं कि H2 शुरुआत में A है, I2 शुरुआत में B है। ठीक है। प्रोडक्ट शुरू में कुछ नहीं होता क्योंकि एकदम से जब रिएक्टेंस कलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट नहीं होता। अगर मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं प्रोडक्ट इनिशियली कुछ है, तो फिर वो वैल्यू भी रख देना। फिलहाल 100 में से 99 क्वेश्चंस में प्रोडक्ट 0 होता है। ओके, तो यहां मैंने करा ये 0 आ गया। अब इसके बाद आप करेंगे कि अगर इक्वेशन में रिवर्सिबल साइन जो हमें दिख रहा है, मान लो ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हुए, या हम बोलते हैं इसको फाइनल मोल्स कितने हुए। वो कैसे निकलते हैं, उसके लिए पहले चेक करो कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। यस इट इज बैलेंस्ड, इजंट इट। तो जो भी बैलेंस्ड है उन कोफिशिएंट्स को हाईलाइट करो। ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है। इन्हें x का मल्टीपल बना लो, 1x, 1x और 2x। और जो भी इनिशियल मोल्स हैं रिएक्टेंट्स में से, रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स में से इन स्टोइचियोमेट्रिक मल्टीपल्स ऑफ x को माइनस कर दो, और प्रोडक्ट में इस वाले 2x को, जो प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो मल्टीपल ऑफ x है, उसे ऐड कर दो। रिएक्टेंट्स में से माइनस करने हैं, प्रोडक्ट में ऐड करना है। तो व्हाट यू गेट एज a minus 1x, can I write simply x? b minus x, and this is 0 plus 2x, that becomes 2x. Okay, I'm not writing 0 plus 2x, but that is actually 2x. Okay, अब मान ले अगर इन्होंने यहाँ z दे दिया होता है चाहे, तो मैं लिखती z plus 2x। अगर वो इनिशियल 0 ना मानकर, अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो तुम इनिशियल मोल्स हमेशा 0 मानोगे प्रोडक्ट के। ओके, अगर उन्होंने कुछ मेंशन किया है, लाइक वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज देयर आईआईटी के अंदर, आईआईटी एंट्रेंस के अंदर, तो उन्होंने प्रोडक्ट दे दिया था, तो वो कुछ अलग बात है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वैल्यू में थोड़े से चेंजेस हैं। ओके, अब बेटा नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यहां अभी तक हमने मोल्स की बात करी है, वॉल्यूम की नहीं। तो वॉल्यूम क्या होगा, a माइनस एक्स अपॉन वी, b माइनस एक्स अपॉन वी, 2x अपॉन वी, क्योंकि मोल्स अपॉन वॉल्यूम, दैट बिकम्स कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारी मोल्स पर लीटर में हमने यहाँ सबकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। अब आपको फॉर्मूला पता है बेटा केसी का, व्हाट्स दैट, एच आई का स्क्वायर अपॉन H2 और I2, ये एक्सप्रेशन पता है। अब जो जो वैल्यूज इक्विलिब्रियम वाली है वो ही यहाँ रखी जा सकती है। तो लेट्स से 2x अपॉन वी स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स अपॉन वी, और इधर हो गया b माइनस एक्स अपॉन वी, 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स, और इधर आ गया हमारे पास b माइनस एक्स। इज इट क्लियर बच्चे, समझ में आई ये बात? ये आ गया केसी का एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन। ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, ऐसे हमारे पास न्यूमेरिकल्स मिलेंगे।
हमें ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यूज पता हुआ करेंगी, ठीक है, तब हम किया करेंगे। या वो लोग कहेंगे, देखो जरा लैंग्वेज सुनो, कि इट लाइक सर्टेन मोल्स H2 के डिकम्पोज हो गए हैं। डिकम्पोज मतलब खत्म हो गए हैं। खत्म कौन होते हैं? ये एक्स मोल्स। तो उन्होंने क्या करेंगे, आपको एक्स दे देंगे, ठीक है, एक्स यहाँ पे पता होगा, एक्स यहाँ पता होगा, एक्स यहाँ पता होगा, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी अकॉर्डिंगली। तो उस तरीके से फिर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वो भी करेंगे तो आपको दिखता चला जाएगा। एक्स क्या होता है? जितना पोर्शन खत्म हो गया। आप सोचो, रिएक्टेंट तभी तो प्रोडक्ट बनाएगा जब उसमें से कुछ पार्ट घटेगा। तब आपको समझ में आ रहा है मैं एक्स क्यों लिख रही हूँ। एक्स वो पोर्शन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, रिएक्टेंस का, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वो रिएक्टेंट से कम हो रहा है। तो जो पोर्शन कम होता है उसे बोलते हैं डिकम्पोज पोर्शन, और द डिकम्पोज नंबर ऑफ मोल्स, और द मोल्स विच आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। तो उसको सारा का सारा रिएक्टेंट थोड़ी कन्वर्ट हो जाता है एकदम प्रोडक्ट में, थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होता है। तो इससे हम उसे एक्स से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसी के लिए मान लो, इसी इक्वेशन के लिए वो कहें केसी नहीं, हमें तो केपी का एक्सप्रेशन दो। तो केपी के एक्सप्रेशन में आपको इनिशियल मोल्स चाहिए, इक्विलिब्रियम मोल्स चाहिए, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो केसी के एक्सप्रेशन में चाहिए होती है। केपी के एक्सप्रेशन के लिए आपका फॉर्मूला क्या बनता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई, क्योंकि गैस है, का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। तो हम पार्शियल प्रेशर से यहाँ निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपका थर्ड स्टेप यहाँ पे होगा टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, जो कि H2 का A माइनस एक्स है, I2 का B माइनस एक्स है, और जो आपका HI बना उसका 2x है। इक्विलिब्रियम पे यही थे ये वाले। इन तीनों को ऐड कर दोगे, तो एडिशन पे आपका ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचा? A प्लस बी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 कैसे निकलता है? HI के मोल्स थे इक्विलिब्रियम पे 2x, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गया A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। जैसे यहां हम जब केसी निकालते हैं टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, ऐसे यहाँ पे जब केपी निकालते हैं तो ये होता है इनिशियल सॉरी इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने हैं अपॉन टोटल मोल्स जो ये निकले इक्विलिब्रियम पे, उससे डिवाइड करोगे इनटू पी टोटल। दैट इज द वे दैट यू हैव टू मूव। पी टोटल क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, अब बता H2 का क्या लिखूं? दिस इज A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू पी टोटल। दिस इज B माइनस एक्स A प्लस बी इंटू पी टोटल। अब जो आपने केपी का एक्सप्रेशन बनाया था, बस सारी वैल्यूज इसके अंदर रख दो, दैट्स इट। तो दिस इज 2x अपॉन A प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू पी टोटल, और B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू पी टोटल। तो क्या आया बच्चे, यहाँ देखते हैं। सी पी टोटल का स्क्वायर, नीचे पी टोटल का स्क्वायर कैंसिल हो गया। A प्लस बी स्क्वायर ऊपर है, A प्लस बी स्क्वायर नीचे है, ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास बचा 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स। हालांकि अब जो हमने केपी निकाला है, यू कैन सी दिस, ये वाला केपी और जो अभी हमने यहाँ केसी निकाला था एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन हर इक्वेशन में ऐसा नहीं होगा। यहाँ ऐसा क्यों हुआ? इफ यू पीपल रिमेम्बर, हमारे पास एक इक्वेशन हुआ करती थी, केपी इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। जो इक्वेशन अभी हमारे पास है वो है H2I2 रिवर्सिबल साइन 2 टाइम्स ऑफ HI। अगर मैं डेल्टा एन निकालूं, यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 1 प्लस 1, ये भी 2 है, तो डेल्टा एन कितना हो गया? 0। तो इफ यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 0 हियर, तो ये 1 हो जाएगा, तो KP इक्वल्स टू KC तो आएगा। इसलिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर इस इक्वेशन के लिए हमारे KP और KC के एक्सप्रेशन एक जैसे आ रहे हैं। पहले आप यहां तो कॉपी कीजिए, आई ओपन दैट पेज, पहले आप यहां तो कॉपी कर लीजिए।
डन एवरीवन? जरा ये पेज और कॉपी कर लीजिएगा, क्यों केसी और केपी और केसी की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए सेम आई। जस्ट नोट इट। ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन, किसी भी इक्वेशन के लिए चीज निकाल सकते हैं। करें? तो गिविंग यू an equation dear, PCl5 gas, रिवर्सिबल साइन, PCl3 गैस प्लस Cl2, दोनों का केसी केपी का एक्सप्रेशन निकालो। चलो पहले इनिशियल मोल्स लिखिए। वो आप ए मान लीजिए, यहाँ 0 0, प्रोडक्ट में 0 0। इक्विलिब्रियम मोल्स पे आइए। ए माइनस बैलेंस है या नहीं पहले चेक कर लेना। हाँ है, तो उसको मल्टीपल्स ऑफ एक्स बना के प्रोडक्ट में ऐड करना है, रिएक्टेंट से माइनस करना है। तो ये हो गया 1x और ये हो गया 1x। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे आइए। a माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी। के का एक्सप्रेशन PCl3 Cl2 अपॉन PCl5, x अपॉन वी डॉट x अपॉन वी अपॉन a माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया a माइनस एक्स वी। ये वाला v इस v से कैंसिल हो गया। व्हाट यू गेट इज दिस वन। डन बेटा? अब केपी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए व्हाट डू वी नीड? एग्जैक्टली, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालिए। डोंट यू फॉरगेट बच्चे दैट यू हैव टू ऐड इक्विलिब्रियम मोल्स, नॉट द इनिशियल मोल्स। a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, a प्लस एक्स। नाउ केपी के एक्सप्रेशन में रखते चले जाओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। सो व्हाट डू यू गेट? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। x और x ये हैं, तो x अपॉन a प्लस एक्स इंटू पी टोटल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का सेम आएगा। इसका भी x अपॉन a प्लस एक्स पी टोटल स्क्वायर, मतलब पी टोटल PCl3 का PCl2 का भी यही बैठेगा, तो मैंने स्क्वायर कर लिया। गॉट इट? अपॉन PCl5 का होगा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स पी टोटल। नो नीड टू फर्दर, मतलब इसे सिंप्लीफाई करने की फर्दर जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो ऐसे हो। अब बेटा यही मुझे एक चीज और सिखानी है आपको। कभी कभी क्वेश्चंस में आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा पहले हाँ एक बात और देखो, यहाँ केसी का एक्सप्रेशन और केपी का एक्सप्रेशन डिफरेंट है, क्योंकि डेल्टा एन यहाँ पे 0 नहीं है। सोचो 1 + 1 2, 2 में से 1 गया 1, तो डेल्टा एन की वैल्यू 1 आएगी। तो कुछ और आएगी केसी केपी की वैल्यू। ठीक है? केपी केसी तभी इक्वल होते हैं जब डेल्टा एन 0 होता है, जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट उसमें किया था एक्सप्लेनेशन में। ओके, अब इसी में क्वेश्चन में एक चीज और सीखनी है आपको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कब आती है? जब हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है, या क्वेश्चन में मेंशन होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करो। व्हाट इज द वर्ड? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। इसी क्वेश्चन में PCl5 गैस, रिवर्सिबल साइन PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। एल्फा इज नोन एज बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे होता है? जैसे अभी आपने इनिशियल मोल्स निकाले, व्हाट वर दे? A B 0। फिर इक्विलिब्रियम मोल्स निकाले,
दैट वाज A माइनस एक्स, आई एम सो सॉरी बच्चे, आई एम सो सॉरी, A 0 0, तो दैट इज A माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स, इजंट इट? ये कोफिशिएंट, मतलब बैलेंस होना बहुत जरूरी है बच्चे, अगर बैलेंस गलत हो गया ना तो देखो सारे नंबर गलत पढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो अब इसके बाद आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम मोल्स के बाद आपने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालते थे। अब इसमें थर्ड स्टेप है, अगर कोई भी क्वेश्चन में अल्फा नाम की चीज मेंशन्ड है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेंशन्ड है, समझ जाना यहाँ पे हमें मोल्स को अल्फा के टर्म्स में मेंशन करना है। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, का मतलब होता है रिएक्टेंट के एक मोल में से जितना पोर्शन कम हो गया, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। रिएक्शन के एक मोल में से जितना पोर्शन कम हो जाए। तो कैसे निकलता है ये अल्फा? अल्फा इज कैलकुलेटेड एज इक्विलिब्रियम मोल में से, देखो ए में से कितना कम हो रहा है, एक्स, ओरिजिनल कितना था ए, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अल्फा। ठीक है, जनरली क्योंकि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जब हम बात करते हैं, ये स्मॉल ए 1 होता है, 1। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग मैंने इसे ए मान के कर दिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है 1 मोल में से कम होना, तो ए कितना है, 1। 1 में से एक्स पोर्शन कम हुआ, तो एक्स अपॉन 1, एक्स अपॉन ए इज नोन एज अल्फा। अब एक बात और, अगर ये है तो एक्स किसके इक्वल है, ए अल्फा, तो जहां जहां आपने एक्स लिखा है वहां ए अल्फा डाल दो। ठीक है, अब ए कॉमन हो गया तो 1 माइनस अल्फा, दिस इज ए अल्फा, दिस इज ए अल्फा। बस अब केसी के एक्सप्रेशन में ऐसे ही रख दो। क्या था एक्सप्रेशन, PCl3 Cl2 अपॉन PCl5। लेकिन याद रखना अपॉन वी करना मत भूलना, वी क्यों आएगा बेटा, तभी तो हम बोलेंगे इसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा। और ये क्या था, इक्विलिब्रियम मोल्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अब वैल्यू जब रखोगे, दैट इज ए अल्फा अपॉन वी डॉट ए अल्फा अपॉन वी अपॉन ए 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। अब वो जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं एक्सप्रेशन बता रही हूँ, मतलब इस तरह से बनते चले जाए। इज दैट क्लियर? अल्फा पता होगा, ए पता होगा, वी पता होगा, तो केसी कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात रही मैम केपी कैसे करें, तो इक्विलिब्रियम मोल्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा जो आए हैं उन्हें ऐड कर लो। अब तक हम इक्विलिब्रियम मोल्स ऐड कर रहे थे, अब आप इसमें ऐड कर लो। इज दैट क्लियर? और फिर क्वेश्चन को आगे मूव करो। चलो लेट्स मूव ऑन, करो जरा, पहले आप ये कॉपी कर लो। जनरली अल्फा वहां पूछा जाता है डियर जहां पर हमारे पास एक ही रिएक्टेंट होता है। जनरली अल्फा वहां पूछा जाता है जहां हमारे पास एक ही रिएक्टेंट होता है। गॉट इट बच्चे? अल्फा वहां पूछा जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात वहां की जाती है मोस्टली क्वेश्चंस में जहां पर एक ही रिएक्टेंट होता है। लेकिन अगर ज्यादा आए तो कोई बात नहीं, फिर वैसे करेंगे। लेकिन आइडली डिसोसिएशन है तो रिएक्टेंट एक होता है जो टूट जाता है, तो इसलिए यहाँ पे वन रिएक्टेंट प्रोसीजर पे ही हम चलते हैं। बट माइट भी अगर कुछ डिफरेंट आया तो उस क्वेश्चन को उसी वक्त उसी की तरह से हम एंटरटेन करेंगे। गॉट इट डियर? डन? हाँ जी। या हाँ हाँ, ये तो बेटा अभी हम कर रहे हैं, अगर तू डाल भी देगी दैट डजेंट मैटर, क्योंकि वहां तो नंबर्स होंगे, तो तब भी तुम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालोगे, दैट्स फाइन। इट्स ऑल इन मोल्स पर लीटर।
डन है एवरीवन। अब केपी निकालने की कोशिश करो, इक्विलिब्रियम मोल्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा को ऐड कर लो। इक्विलिब्रियम मोल्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा को ऐड करो बच्चे। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम A minus A alpha plus A alpha plus A alpha. Let's cut this down. This comes out A plus A alpha. तो Kp का एक्सप्रेशन होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो करिए यहाँ पे अब हमारे पास ये है, ये था हमारे पास A अल्फा अपॉन A, कैन आई राइट दिस वे बेटा, A1 प्लस अल्फा, ठीक है, इनटू P टोटल। डोंट यू फॉरगेट टू राइट पी टोटल, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ए अल्फा अपॉन A1 प्लस अल्फा पी टोटल अपॉन A माइनस A अल्फा अपॉन A1 प्लस अल्फा इंटू P2। अब इस एक्सप्रेशन के साथ जो भी वैल्यू बन के आएगी वो हमें नहीं एक्सप्रेशन निकालना, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन सीखना है, ऐसे होगा। समझ गए आप लोग? करें आगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। N2O4 रिवर्सिबल साइन 2 टाइम्स ऑफ NO2। पहले केसी निकालिए, केपी का एक्सप्रेशन निकालिए, और फिर इन दोनों का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकालिए। तो सबसे पहले इनिशियल मोल्स ए 0, इक्विलिब्रियम पे मोल्स बैलेंस्ड है A माइनस एक्स, दिस इज 2x। इक्विलिब्रियम मोल्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अल्फा इज x अपॉन A, x इक्वल्स टू A अल्फा, A माइनस A अल्फा, and it is 2x की जगह A अल्फा। I hope you are getting x upon A is अल्फा। फिर x को हमने सब्जेक्ट बनाते हुए A अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया, जहां जहां x है वहां A अल्फा लगा दिया। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन A माइनस A अल्फा अपॉन V, 2A अल्फा अपॉन V। अब देख बेटा, अगर बिना बिना उसके आई मीन टू से अल्फा के बिना आपसे पूछा जाए केसी का एक्सप्रेशन बताओ, तो आप लगाते फॉर्मूला, दैट इज A2x अपॉन V का स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स अपॉन V। लेकिन अगर अल्फा के टर्म्स में है तो आप इसे कैसे रखेंगे, इनको 2A अल्फा अपॉन V का स्क्वायर अपॉन A माइनस A अल्फा अपॉन V का स्क्वायर। नहीं नहीं, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, सॉरी, नीचे स्क्वायर नहीं होने का। समझ में आई बात? ये इन टर्म्स ऑफ अल्फा है, ये विदाउट अल्फा है। और केपी निकालिए। अब कल से इसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर कल हमारे सिर्फ न्यूमेरिकल्स चलेंगे।
So now for Kp, total moles at equilibrium. A minus x plus 2x, A plus x, और अगर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ अल्फा बात करें, तो Kp का एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4. और अगर इन टर्म्स ऑफ अल्फा रखें बच्चे, देख लीजिए ये सब हो गए हैं. इज इट सो? समझ में आ गया? तो दिस इज द वे दैट यू हैव टू मूव विद अल्फा विदाउट अल्फा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो करना, नहीं है तो फिर एक्स वाला ही रखना, नहीं तो एक्स को कन्वर्ट करना पड़ता है अल्फा के टर्म्स में. तो अल्फा इज व्हाट देयर, दैट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. हाउ टू कैलकुलेट इट? जितना पोर्शन रिएक्टेंट का कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, उसके अपॉन में जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसे रखना, यानी एक्स अपॉन ए. सपोज ये A2 है, x यहाँ पे 1 है, तो आपका अल्फा हो गया हाफ. x1 हो गया, A2 हो गया, तो 1/2 हो गया आपका अल्फा. तो उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन चलेगा. इज इट क्लियर डियर? ठीक है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूमेरिकल्स नाउ. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. 2 times of NO gas, Br2 gas, reversible sign, 2 times of NOBr gas. When 0.087 mole of NO and 0.0437 mole of Br2 are mixed in a closed container at constant temperature, 0.0518 mole of NOBr is obtained at equilibrium. Calculate equilibrium amount of NO and Br2.
नाउ लेट्स मूव ऑन। इक्वेशन लिखो पहले। 2 टाइम्स ऑफ NO gas, Br2 gas, 2 टाइम्स ऑफ NOBr gas। इनिशियल आपको क्या दिया है जरा देखो। इतने मोल्स ऑफ NO और इतने मोल्स ऑफ Br2, यानी 0.087 मोल्स इसके हैं, 0.0437 मोल्स इसके हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मिक्स किए गए इतने मोल्स ऑफ NOBr ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम। तो पहले इक्विलिब्रियम मोल्स बनाओ, ये तो इनिशियल मोल्स है, इधर ये जीरो हो गए। आप इक्विलिब्रियम मोल्स बनाओ। कैसे सिखाया है आपको? इनिशियल में से माइनस कर दो 2x, इनिशियल में से रिएक्टेंट साइड पे माइनस कर दो इधर x, और ये हो गए 2x। अब बताओ, लैंग्वेज पढ़ो, ये क्या दे रखी है आपको, मुझे बताओ। इज इट 0.087 माइनस 2x, इज इट 0.0437 माइनस x, और इट इज 2x। 2x क्योंकि उन्होंने बोला इतने मोल्स ऑफ NOBr, NOBr इज हियर ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे NOBr के 2x ही तो होते हैं। तो तुम्हें दे रखा है 2x इक्वल्स टू 0.0518 मोल्स। तो क्या x नहीं आ जाएगा? इट विल बी 0.0259, इजंट इट? अब क्या मांग रहे हैं? इक्विलिब्रियम अमाउंट NO का निकालो, Br2 का निकालो, तो ये तो बहुत सिंपल है। NO का इक्विलिब्रियम अमाउंट है 0.087 में से 2x को माइनस कर दो, और Br2 में से 0.0437 में से x को माइनस कर दो। तो व्हाट डू यू गेट? इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ NO 0.087 माइनस 0.0518, क्योंकि 2x ही 0.0518 है, तो 0.0352 मोल्स इसका आ गया। और दूसरा मांग रहे हैं Br2 का 0.0437 माइनस 0.0259, क्योंकि x माइनस करना है, तो 0.0178 मोल्स। इज इट सो? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ठीक है, तो आज के लिए यहां तक रखते हैं, कल से इसके और न्यूमेरिकल्स करने शुरू कर देंगे। So this is all done for today. Rest of all tomorrow, बच्चे. Goodbye for now.